السلام علیکم فرینڈس، ناول زندگی ہے تیرے نال جس کو تحریر کیا ہے حرم شاہ نے، اس کی میں قسط 6 ریڈ کروں گی. تو یقیناً آپ لوگوں نے اس کی پچھلی قسط ریڈ کری ہوگی، تو اس کے بارے میں میرے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ناول آپ لوگوں کو اب تک کیسا لگ رہا ہے. اور میری آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا. چلیں اب زیادہ انتظار نہیں کرتے، پڑھتے ہیں اس قسط کی جانب. لیزا کمرے میں واپس آ کر بے چینی سے ٹہل رہی تھی. ابھی کسی بھی وقت نرس اس کے پاس آ کر اسے بتانے والی تھی کہ وان کو زہر دے چکی تھی، اور لیزا کو اس خبر کا بے چینی سے انتظار تھا. اچانک ہی دروازہ کھلا اور وہ نرس پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئی. کام ہو گیا؟ لیزا کے پوچھنے پر نرس اضطراب سے اپنی کو انگلیاں چٹکانے لگی. جواب دو. نرس کی خاموشی دیکھ کر لیزا نے غصے سے کہا، میں تو دودھ ان کے پاس لے کے جا رہی تھی، لیکن نہ جانے کہاں سے ایک جاہل ملازمہ آ کر مجھ سے ٹکرا گیا، سارا دودھ گر گیا. نرس نے سہمے سے انداز میں لیزا کو بتایا، جبکہ اپنا پلان فیل ہونے پر لیزا کے غصے سے پاگل ہو چکی تھی، اس لیے بغیر سوچے سمجھے سے ایک تھپڑ نرس کے منہ پہ مار دیا. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے جاہل عورت، مجھے نظر بھی مت آنا ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا. لیزا غصے سے چلا اور پاس پڑی کرسی کو زمین پہ پٹک کر اس کمرے سے باہر نکل گئی. اس وقت غصے اور جنون میں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. صبح شاید اسے کینیڈا واپس لے جانے والے تھے اور وہ اپنا یہ آخری موقع بھی کھو چکی تھی. لیزا بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑیوں کے پاس ہے اور ایک کار پکڑ کر حویلی سے باہر نکل گئی، اور اس وقت بس اکیلے رہنا چاہتی تھی. کچھ دیر گاڑی گھمانے کے بعد اس نے ایک سنسان جگہ پہ گاڑی روکی، اس طرح سے اپنے بال نوچتے ہوئے یہاں وہاں ٹہلنے لگی. وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کل وہ یہاں سے چلی جائے گی اور اس کی چاہت کسی اور کی ہو جائے گی. وہ ہر من چاہی چیز کو حاصل کرنے کے والی لڑکی اس بات کا گوارا نہیں کر پا رہی تھی. نہ جانے سے اس جگہ پہ کتنا وقت گزارا تھا، پھر واپس حویلی جانے کا سوچا. وہ کچھ نہ کچھ کر کے ایشمن کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ ایک گاڑی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی. لیزا نے گھبرا کر اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی، لیکن تبھی ایک گاڑی اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تو لیزا فوراً بریک لگا کر گاڑی روک دی اور گھبرا کر پیچھے دیکھا، جہاں دوسری گاڑی اس کا پیچھے کا راستہ بھی روک چکی تھی. لیزا اب بری طرح سے سہم چکی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ کون وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ کون تھے اور انہیں اس کا راستہ کیوں روکا تھا. تبھی کچھ آدمی گاڑی سے نکل لیزا کے پاس آ کر اس کی گاڑی کا دروازہ کھولو تو ایک چیخ لیزا کے ہونٹوں سے نکلی، کون ہو تم لوگ؟ لیزا چلائی، لیکن ایک آدمی نے اسے کھینچ کے گاڑی سے نکالا اور اسے لے جا کر زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے لگا. اس کی جرأت پر لیزا چلاتے ہوئے بری طرح سے مذمت کرنے لگی، لیکن 2 اور آدمیوں نے اسے دبوچ کر گاڑی میں ڈالا. پورا راستہ لیزا ان آدمیوں سے لڑتی رہی، لیکن خود کو چھڑانے میں ناکام ثابت ہوئی تھی. آخرکار گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے باہر رکی تو وہ آدمی لیزا کو اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹتے ہوئے اس حویلی میں لے گیا اور اسے لے جا کر شان سے صوفے پہ بیٹھے ایک آدمی کے قدموں میں پھینکا. لیزا نے فوراً نگاہ اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا تو اس کا غصہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا. تمہاری ہمت کیسی ہو تم مجھے کڈنیپ کر کے یہاں بلاؤ؟ جاہل آدمی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. لیزا کے چلانے پر عظم نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا اور پھر صوفے سے اٹھ کر ایک عورت کے پاس گیا. یہ میری ملازمہ ہے جسے میں نے ملکوں کی حویلی آن کا خیال رکھنے بھیجا تھا. عظم کے ایسے کہنے پر غلام اس کی ہر بات لیزا کو انگلش میں بتانے لگا. آج اس نے تمہیں اور ایک لڑکی کو دودھ میں زہر ڈال کر آن کو دیتے ہوئے دیکھا. غلام کی یہ بات انگلش میں بتانے پر لیزا کا سارا غصہ ختم ہوا اور اپنا پول کھلنے کا ڈر اس پہ حاوی ہوا. تو تم کیا کہو گی اس بارے میں؟ آخر کیوں کرنا چاہا تم نے؟ ایسے کیوں لینا چاہتی ہو تم آن کی جان؟ لیزا عظم کی آواز پہ چھپا غصہ محسوس کر کے بری طرح سے سہم گئی تھی، لیکن اس نے اپنا یہ خوف چہرے پہ ظاہر ہونے نہیں دیا. تم پولیس والے نہیں ہو جو میں تمہیں کوئی جواب دوں. تم ہوتے کون ہو میرے معاملے میں دخل دینے والے؟ اس کی بات پر غلام اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج گیا، لیکن پھر بھی اس نے خود پہ قابو کرتے ہوئے ساری بات عظم کو بتا دی. میں اس گاؤں کا دوسرا سردار ہوں بیوی، اور تم تو کیا یہاں پر ہر موجود پرندہ بھی مجھے جواب دے رہے ہیں. اب جو جواب پوچھا ہے شرافت سے اس کا جواب دو ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. غلام کی یہ باتیں انگلش میں دہرانے پہ لیزا ہٹ درمی سے اپنے ہاتھ سینے پہ لپیٹ گئی. جو کرنا ہے کر لو. لیزا کی ہٹ درمی پہ سب حیران ہوتے. پھر عظم نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جو شاید کو وہاں لے کر داخل ہوا اور اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر لیزا اب سچ میں ڈر چکی تھی. تمہاری ہمت کیسی ہوئی چودھری کہ تم میری بیٹی کو یہاں لا کر اس پہ اتنا بڑا الزام لگاؤ؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ عظم کو دیکھتے ہی شاید غصے سے چلائے، لیکن عظم ان کے غصے کا نظر انداز کرتا ان کے پاس آیا. تمہاری اس لاڈلی بیٹی نے جسے مارنے کی کوشش کی تھی، جانتے ہو وہ کون ہے؟ تمہاری دوسری بیٹی آن ملک. عظم کا لہجہ جتلانے والا تھا. تم جھوٹ بولو، میری لیزا ایسا نہیں کر سکتی. شاہد نے پورے اعتماد سے کہا، جبکہ اس کے اعتماد کو عظم نے چپٹی نگاہوں سے دیکھا. اچھا، تمہارے اس اعتماد کو ابھی خاک میں ملاتا ہوں میں.
इतना कहकर अज़म उस मुलाज़िमा के पास आया जिसे इसने आन की हिफाजत के लिए भेजा था और इसी ने इसे लिज़ा के बारे में बताया था। बताओ इन्हें जो मुझे बताया था। अज़म के हुक्म पर मुलाज़िमा ने शाहिद की जानिब देखा। मैंने की अंग्रेज़ी में की बातें तो नहीं समझी थी साहब जी, लेकिन उन्होंने दूध में कुछ मिलाया था। फिर मैंने इन्हें आन बीबी का नाम लेते हुए सुना। इस मुलाज़िमा की बात पर शाहिद ने अपनी आंखें सुकड़ कर अज़म की जानिब देखा। इससे कुछ साबित नहीं हो रहा चौधरी। शाहिद की जानिब पर अज़म मुस्कुराया। ज़रा सब्र करो मलिक साहब, अभी पिक्चर बाकी है। इतना कहकर अज़म ने अपने एक मुलाजिम को इशारा किया जो कुछ देर के बाद ही इस नर्स को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। नर्स को वहाँ देखकर लीज़ा पूरी तरह से गड़बड़ा गई थी। यहाँ आओ लड़की। अज़म के पुकारने पर वह नर्स खौफ से थर थर काँपने लगी और घबराते हुए अज़म के करीब आई। सब कुछ सच सच बताओ, इस शख्स को। अज़म के हुक्म पर नर्स ने एक पर खौफ निगाह लीज़ा पर डालने के बाद शाहिद को देखा। उन्होंने मुझे हीरे का हार देकर सबसे खतरनाक जहर लाने का कहा। मुझे लगा वो ये जहर अपने लिए मंगवा रही हैं, लेकिन कल रात उन्होंने वो जहर दूध में डालकर डॉक्टर आन को देने का कहा। बदले में उन्होंने मुझे बहुत से डॉलर दिए थे, लेकिन ये मुलाज़िम मुझसे टकरा गया और वो सारा दूध ज़ाया हो गया। नर्स इतना कहकर फुट-फुट कर रोने लगी। इसकी बातों को न समझने के बावजूद लीज़ा इतना समझ चुकी थी कि वो इसका हर पोल खोल चुकी है। डैडी ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। लीज़ा अपने आप को छुड़वाकर शाहिद के पास आई, लेकिन इनकी आंखों में बेयकीनी देखकर वो ठिठक गई। आपको मुझ पे यकीन नहीं डैडी, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं, लीज़ा चिल्लाई, जबकि शायद खामोशी से देख रहा था। तभी अज़म इसके पास आया। लीज़ा को बाजू से पकड़ कर अर्ज़ करो अपनी जानिब किया, यानी तुम्हें अरशमान और उनकी शादी से कोई एतराज़ नहीं, तो क्यों ना इनकी शादी देख कर ही जाओ। तुम के कैसे एक दूसरे के होकर इन्हें खुशी मिलती है। अज़म की बातों को गुलाम ने इंग्लिश में दोहराई तो लीज़ा ने गुस्से से अज़म को देखा, उसका गिरबान हाथ में पकड़ लिया। अरशमान सिर्फ मेरा है, जाहिल आदमी में से किसी का नहीं होने दूंगी। लीज़ा गुस्से से चिल्लाई और गुलाम की ये बात बताए बगैर ही अज़म का हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो आन का हो चुका है, तुम कुछ भी कर लो इसे हासिल नहीं कर सकोगी। गुलाम ने फिर से अज़म की बात दोहराई तो लीज़ा के होठों से एक चीख निकली, ऐसा कभी नहीं होगा, मार दूंगी इसे। मैंने सुना तुमने शादी के बाद भी इसे मार दूंगी और फिर अरशमान मेरा होगा, सिर्फ मेरा। लीज़ा से समझे बगैर चिल्लाया। अज़म के होठों पे मैंने खैर मुस्कुराहट देखते इसने घबरा कर शाहिद की जानिब देखा। डैड शट अप लीज़ा, जस्ट शट अप। शाहिद इतने गुस्से से चिल्लाई कि लीज़ा काँप कर रह गई। शाहिद के पास आए और ज़िंदगी को गुस्से से देखने लगे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अपनी ज़िद पे तुम इस हद तक गिर जाओगे। तुमने ये तक नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन है जो तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गई और तुम अपनी ज़िद में इसकी जान लेने के लिए तैयार हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता मेरी बेटी इस कदर घटिया हो सकती है। दगा और गुस्से की शिद्दत से शायद की आंखें नम हो चुकी और लीज़ा अपनी नज़रें फेर रही थी। अब मैं इसके साथ मज़ीद ज़्यादती नहीं करूँगा। मैं कल ही इसका निकाह अशमान से कर दूँगा। मैं अब इसका बाप होने का फ़र्ज़ पूरा करूँगा। अशमान की बात पे लीज़ा ने अपने गुस्से से लाल होती आँखों से इन्हें देखा। इससे पहले मैं इसकी जान ले लूँगी। अशमान वो वाहिद मर्द है जो मुझे पसंद है। इसमें मेरा हक़ है। सुना आपने, आज तक लीज़ा ने जो चाह हासिल किया वो अपनी सबसे बड़ी चाहत कुर्बान नहीं करेगी। अगर आन ने इसका होना चाहा तो मार दूँगी इसे और आप कुछ नहीं कर सकोगे। लीज़ा के चिल्लाने पर शाहिद ने हैरत से इसे देखा। इसकी इस हरदर्मी से अब शाहिद को अंदाज़ा हुआ था कि वो इसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करके इसे किस हद तक खुद गर्ज कर चुके थे कि अपने आगे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शट अप लीज़ा, तुम अभी भी इसी वक्त वापस चलोगी मेरे साथ। मैं तुम्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। शाहिद ने इसका हाथ पकड़ा, लेकिन लीज़ा ने इनका हाथ बुरी तरह झटक दिया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मिस्टर शाहिद मलिक, मैं अपनी ख्वाहिश को अधूरा छोड़ना लीज़ा ने नहीं सीखा। आपको जाना है, जाएँ। अभी अल्फाज लीज़ा के मुँह में ही थे जब अचानक अज़म इसके पास है। उसका बाजू पकड़ कर इसको रुख अपनी जानिब करते हुए एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारा, जिसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि लीज़ा जाकर ज़मीन पर गिरी और अपनी गाल पर हाथ रख के हैरत से अज़म को देखने लगी। वो आज तक जिसे इसके माँ बाप ने फूलों की छड़ी से नहीं छुआ था, आज ये अनजान शख्स इसके मुँह पर थप्पड़ मार चुका था। लीज़ा अपने चेहरे पर होने वाली तकलीफ को नज़रअंदाज खड़ी हुई और अज़म को लाल अंगारा आंखों से घूरने लगी। यू जाहिल इंसान, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। मैं तुम्हें चटाक। एक बार फिर इसे अज़म का भारी कम हाथ इसके नाजुक चेहरे पर पड़कर इसकी बोलती बंद कर चुका था। लीज़ा अब सहम कर अज़म को देख रही थी। अज़म ने इसके बालों को अपनी मिट्टी में जगड़ा और बुरी तरह इसे घूरने लगा। ज़बान को लगाम दो लड़की, तुम मेरी फूफो की बेटी के बारे में बात कर रही हो। अगर अब तुमने कुछ बकवास की ना तो तुम्हारी ज़बान गुद्दी से निकाल दूंगा। लीज़ा अज़म की बात समझ तो नहीं पाई थी, लेकिन इसकी आंखों से निकलने वाले शरारों से काफ़ी खौफज़दा हुई थी। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ ज़्यादा सर चढ़ा रखा है जो इतनी सी उम्र में इस कदर मनमाती पर उतरी हो। एक मौका मिलने पर तुम्हें तीर की तरह सीधा ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी अज़म चौधरी नहीं। इतना कहकर अज़म ने इसे शाहिद की जानिब धकेल दिया और लीज़ा अब तवाज़ुन बरकरार न रखती हुई शाहिद से
टकराई और नम आंखें देखकर इन्हें दे उठाकर इन्हें देखने लगी। डैड, शाहिद ने मुर्दा आंखों से इसकी आंखों में मौजूद आंसू और चेहरे पर मौजूद लाल निशान को देखा। आज तुमने मेरा गुरूर तोड़ दिया लीजा, ये समझो कि अपने डैड को तुमने ख़त्म कर दिया। लीजा ने हैरत से अपने बाप को देखा, जो किसी को किसी इसकी जानिब आंख उठाकर देखने की इजाज़त नहीं देता था। आज कैसे इसको इस पर हाथ उठाते देखकर खामोश रहा था। तुम मुझे जान से अजीज थी, क्योंकि तुम मेरी और मार्था की मोहब्बत की निशानी थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं गलत था। शाहिद ने एक पल को अपनी आंखें मूंद कर गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें अपनी आन की ज़िंदगी में बर्बाद नहीं करने दूंगा, इसकी खुशियाँ छीनने नहीं दूंगा। लीजा हैरत से शाहिद को देख रही थी, जो दुनिया इसके कदमों में डालने के लिए तैयार रहते थे, आज इनके हुकूक की बात कर रहे थे। सारी दुनिया बस तुम्हारा बाप बनकर रहा हूँ, अपनी सारी मोहब्बत तुम पर निछावर करता रहा, अब मैं इसका बाप होने का फ़र्ज अदा करूँगा। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारा ये गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। इतना कहकर शाहिद ने अज़म की जानिब देखा, जो गहरी नज़र से इस बाप बेटी को देख रहा था। इसका गुनाह सच साबित होने की सूरत में मैं जो सज़ा तुमने मुझे तस्वीर की थी वो मुझे मंजूर है। शाहिद की बात पर पहली तो अज़म की आंखें हैरत से फैल गई, फिर इसके होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। इसने मुड़कर गुलाम की जानिब देखा। इन्हें कहा, ख्वाह का इंतज़ार करो गुलाम, इस विलायती चूजी को उम्र कैद की सज़ा होगी। अज़म ने अपनी मूछ को ताकर देते हुए कहा, लेकिन इसकी बात तो गुलाम कुछ खास पसंद न आई। ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं अज़म, प्लीज़ गुस्से में अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। अज़म ने सख्ती से गुलाम को घूरा। आन की हिफाजत के लिए कुछ भी करूँगा गुलाम, मुझे रोज़े क़यामत अपनी माँ और बाबा को मुँह दिखाना है। अज़म ने गहरी सोच के आलम में कहा, लेकिन गुलाम को अपनी जगह पे जमा देकर अज़म के माथे पर बल आ चुके थे। जैसा कहा है करो, वह ये मेरा हुक्म है। अज़म की सख्ती पर न चाहते हुए गुलाम को वहाँ से जाना पड़ा। अज़म के एक इशारे पर एक मुलाज़िम वहाँ आई, लीज़ा को बाजू से पकड़ लिया। क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है डैड। लीज़ा ने सख्ती से अपनी जोनी छुड़वाई, लेकिन उस मुलाज़िमा की पकड़ बहुत मजबूत थी। जबकि इसके सवाल पे शायद गहरी सोच में पड़ गए। मैं तुम्हारी शादी अज़म चौधरी से करवा रहा हूँ लीज़ा। लीज़ा को लगा किसी ने इस पर एक बम फोड़ दिया, और वो हैरत से आंखें खोले अपने बाप को देखने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, शादी मंजूर नहीं है। लीज़ा फिर से गुस्से से चिल्लाई थी। इसे देखा अज़म फिर से अपनी आंखें सिकुड़ चुका था। मैं तुम्हारा बाप हूँ लीज़ा, जो चाहे कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर ये है कि मेरी बात मान लो, क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो अब तुम्हें ये शादी करनी होगी। लीज़ा ने फ़ौरन अपना आप नौकरानी की गिरफ्त से छुड़ाया, रोते हुए शाहिद के पास आ गई। प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे जाहिल गवार से शादी नहीं करनी, प्लीज़ डैड, आई लाइक शमार से शादी, बस लीज़ा शमार का नाम भी ना आए तुम्हारी ज़बान पे, वो बस आन की मलकियत है। लीज़ा हैरत से आंखें खोले अपने बाप को देखने लगी। तो ठीक है, जो होता है कर ले, मैं शादी नहीं करूँगी। शाहिद ने इसकी हरदर्मी पे गहरा सांस लेकर अज़म की जानिब देखा। वो तुमसे शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अज़म शाहिद की बात का जवाब देने के बजाय लीज़ा के पास आया और उसका हाथ पकड़ के इसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले जाने लगा। लीज़ा मुसलसल चिल्लाते हुए मज़म्मत कर रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। इसने लीज़ा को लाकर एक कमरे के बेड पर पट फेंका और खुद अलमारी के पास चला गया। ढूंढने के बाद हैंगर में लटका एक लाल रंग का शरारा कुर्ती, जो कि इनके ख़ानदान की बहू के लिए ख़ानदानी जोड़ा था, लाकर लीज़ा के पास फेंका। तुम जाहिल गवार आदमी, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊँगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूँगी। सुना तुमने। लीज़ा गुस्से से चलाई, लेकिन अज़म फिर से अलमारी के पास चला गया। लीज़ा ने वो जोड़ा पकड़ कर फर्श पर फेंका। भाड़ में गए तुम और तुम्हारा शादी का लिबास, मैं तुमसे कभी भी। अज़म ने इसके पास वापस आकर हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर इसके माथे पर रख दिया। इस रिवॉल्वर को देखकर लीज़ा का सांस था खौफ से हलक में अटक चुका था। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने मराने का, आज तुम्हारा ये शौक पूरा कर ही देता हूँ, बस एक गोली और तुम से सबकी जान छूट जाएगी। अज़म ने रिवॉल्वर की नली ज़रा ज़ोर से इसके माथे पर दबाई, तो लीज़ा अपनी सहमी सी शहद रंग की आंखें मेज गई। आंखें खोलो। अज़म के चिल्लाने पर खौफ से उछल पड़ी और फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी। वो जो 2 बार ज़िंदगी की बाजी बेखौफ होकर लगा चुकी थी, आज सच में मौत को अपने सामने देखकर बुरी तरह से सहम चुकी थी। तुम्हारे पास इस वक़्त बस 2 ही रास्ते हैं, या तो अपने बाप की बात मान लो, या मैं तुम्हें तुम्हारी इस ज़िंदगी से आज़ाद कर दूँ, जिससे तुम पहले ही काफ़ी तंग हो। अब अज़म अब रिवॉल्वर की नली को नीचे लाता हुआ इसकी ठोड़ी के नीचे रख चुका था, जिसकी वजह से लीज़ा का हसीन चेहरा खुद ब खुद ऊपर हो गया। इस वक़्त अज़म इसके बहुत करीब खड़ा था और लीज़ा का खौफ से साँस लेना मुहाल था। क्या था वो शख़्स, वो लीज़ा जो किसी से भी नहीं डरती थी। इस आदमी की छोटी से छोटी हरकत पे इसकी रूह खौफ से काँप जाती थी। अब फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये अज़म ने रिवॉल्वर से इसका चेहरा थोड़ा ऊपर किया, तो शहद रंग की आंखें फिर से खौफ से बंद हो गईं। अज़म ने दिलचस्पी से इसके कँपकपाते नाज़ुक वजूद और मासूम चेहरे को देखा। इससे दूर होकर फर्श पे पड़े इस जोड़े को उठाकर इसके पास गया। या ये अज़म ने वो जोड़ा इसके सामने किया, तो लीज़ा इसकी गुस्से से भरी आंखों में वार्निंग को पड़ती हुई खुद ब खुद वो जोड़ा अपने हाथ में थाम गई। वो एक बार फिर से इसकी बात को समझे बगैर ही समझ चुकी थी। लीज़ा के हाथ में सर हिलाते घनी पूँछों से तले अनाबी होठों पे शानदार मुस्कुराहट आई और अज़म ने वॉशरूम की जानिब इशारा किया, तो लीज़ा वहाँ चली गई। थोड़ी देर के बाद
इंतज़ार है। बात ही लीज़ा वो जूड़ा पहनकर वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। अज़म ने एक नज़र इस लिबास को देखा और उसके लिए ज़रा-सा चुस्त साबित हुआ था, इसलिए इसकी नस्वानी हुस्न को मज़ीद तो आशना कर रहा था। इस पर कोई हक़ न होने के बाइस अज़म ने फ़ौरन इससे निगाह हटाई, उसके करीब आकर सुनहरी काम वाला लाल दुपट्टा इसके सर पर फैला दिया। लीज़ा अभी भी सहमी-सी इसके सामने खड़ी थी। अब वो पहले वाली शेरनी नहीं थी, एक सहमी-सी चूज़ी बन चुकी थी। अज़म ने इसके सर से हाथ हटाते हुए इसकी गर्दन तक लाया, हल्के से इसकी गर्दन को हाथ में दबोच लिया। बाहर कोई तमाशा लगाए ना तो यकीन जानो तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारी जान ले लूँगा और वो उफ़ तक नहीं कर पाएगा। सीधी रहना विलायती चूज़ी, वरना मेरे एक झटके की मार है और तुम्हारी ये गर्दन। अज़म के सहारा से दबाव बढ़ाने पर लीज़ा काम कर रह गई। अज़म ने इसे छोड़ा, बाहर आकर मुलाज़िमा को उसके पास जाने का इशारा करते हुए खुद शाहिद के पास आया, जो अभी भी हॉल में अपना सर हाथों में थामे बैठे थे। वो तैयार हैं निकाह के लिए। अज़म की बात पे शाहिद ने हैरत से इसे देखा। लीज़ा कैसे तैयार हो सकती है इस निकाह के लिए? इसने तो कभी किसी की बात मानना सीखा ही कहाँ था। अचानक इन्हें अपना फैसला ठीक लगने लगा। सामने मौजूद शख्स ही शायद वो इंसान था जो इनकी बिगड़ी बेटी को काबू में कर सकता था। अज़म बेटा वो दिल की बुरी नहीं, बस हमारी ढील ने इसे खुद गर्ज और मतलब परस्त बना दिया है। मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, चाहो तो इसे सख्ती से पेश आ जाना, लेकिन इतना भी नहीं। शायद ने नम आंखों से अज़म की जानिब देखा। औरत मर्द की फसली से बनी है। अज़म नरमी से सीधा करने पर सीधा हो जाएगी, लेकिन सख्ती से बहुत आसानी से टूट जाती है। शायद ख्वाब सी कैफियत में बोलते चले गए। वो बस 18 साल की एक ज़िद्दी बच्ची है। मैं इसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देना चाहता था, लेकिन वो हद पार करने पर तुली और मैं अपनी दूसरी औलाद के फ़राइज़ भी पूरा करना चाहता हूँ। शाहिद ने नम आँखें उठाकर अज़म को देखा। इसे एक मुजरिम से ज़्यादा एक नादान बच्ची समझना। अज़म इससे इतनी सख्ती से पेश मत आना कि वो हमेशा के लिए टूट जाए। शाहिद की आंखों में उम्मीद देखकर अज़म इस बच्चे बाप को मना ना कर सका, वरना इसके दिल में आ रहा था कि वो शख्स से पूछे क्या ये बातें इसे तब याद नहीं थी जब वो इसकी फुप्पो से बेवफ़ाई करता रहा था। वो इनके अपना हक़ मांगने पर इन्हें बेदर्दी से मारता रहा था। आज बात जब अपनी बेटी पर आई तो वो बाप क्यों भूल गया कि दुनिया मुकाफ़ात अमल है। जैसा सलूक किसी की बेटी से करोगे, कल को वैसा सलूक तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा। इसका नाम अंदाज़ लिबास सब अंग्रेज़ों जैसा है। क्या वो लड़की मुसलमान भी है या बस एक नाम नहाद मुसलमान मर्द का खून है? अज़म के सवाल पे शाहिद का सर शर्मिंदगी से झुक गया। इसका असल नाम लीज़ा ने गज़ल शाहिद मलिक। बचपन में मैंने इसे अपने मुताबिक ढालना चाहा, इसे कलमे सिखाया, नमाज़ सिखाई, लेकिन इसके थोड़े बड़ा होते ही इसकी माँ ने सबसे इसके ज़हन से निकाल दिया। वो अपनी बेटी को मशरकी औरतों की तरह पिसते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इसने इसे मोहब्बत करने वाली गज़ल से खुद गर्ज़ी लीज़ा बना दिया। शायद अपनी आंखें कर्ब से मूंद गया। अपनी जवानी में की गलती आज इन्हें भुगतनी पड़ रही थी। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे फिर से गज़ल बना दोगे। अज़म कुछ सोचकर अज़म ने इस बात में सलिलाया। थोड़ी देर के बाद निकाह ख्वाह आ चुके थे। अज़म ने मुलाज़िमा को लीज़ा को हाँ लाने का कहा तो वो लीज़ा को लेकर वहाँ आए। इसका दुपट्टा ढलक कर एक कंधे पर आ चुका था। ये देखकर अज़म इसके पास गया और उसका दुपट्टा पकड़कर इसके सर पे ऐसे दिया कि इसका चेहरा हल्के से घूंघट में छुप गया। लीज़ा ने फ़ौरन दुपट्टा नोचकर उतारना चाहा, लेकिन अज़म ने इसका हाथ थाम लिया और उसके कान के करीब झुका। अज़म चौधरी की होने वाली बीपे को निगाह ढाले, ये इसे गवारा नहीं, इसलिए तुम्हारे सर से हिलना भी नहीं चाहिए। अज़म की आवाज़ में मौजूद वहशत पर लीज़ा भी फिर से सहम गई थी और वहाँ कोई वलवला मत करना, वरना अपनी बात अधूरी छोड़कर अज़म वहाँ से चले गया और लीज़ा मुलाज़िमा की हमराही में शाहिद के पास आकर खड़ी हो गई। आई हेट यू डैड एंड आई विल नेवर फॉरगिव फॉर दिस नेवर। लीज़ा की आवाज़ पे मौजूद नफ़रत पे शाहिद का दिल कट के रह गया, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने वाली वो खुद थी। इस तरह कुछ ही देर में शायद इसके गुनाह की सबसे बड़ी सज़ा दे चुके थे। इसका निकाह इससे 14 साल बड़े शख्स से करवा चुके थे। वो भी वो शख्स जो इनका ख़ानदानी दुश्मन था, लेकिन उस दुनिया में शायद वही एक वाही शख्स था जो आज तक लीज़ा को गुस्से में काबू करके इससे अपनी बात मनवाने में कामयाब हुआ था। निकाह के बाद अज़म लीज़ा को मुलाज़िमा के साथ अपने कमरे में भेज चुका था और शायद भी अपनी बेटी को आखिरी बार नम आँखों से देखकर वहाँ से जा चुके थे। ये तुमने ठीक नहीं किया अज़म, वो लड़की इंतहाई ज़्यादा बदतमीज़ है, तुम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, वो तुम्हारे काबिल नहीं। अज़म गुलाम की आवाज़ में अपने लिए परेशानी महसूस करके मुस्कुराते हुए इसके पास आया। फ़िक्र मत करो दोस्त, जो क्या है सोच समझ कर किया है, मैं सब संभाल लूँगा। इतना कहकर अज़म अपने कमरे की जानिब चला गया, जहाँ इसकी नई नवीली दुल्हन का इसका इंतज़ार कर रही थी, मगर इसकी ये खुशफ़हमी जल्दी ही दूर हो गई। दरवाज़ा खोलते एक गुलदान उड़कर इसकी जानिब आया तो वो अपना फ़ौरन सर एक जानिब करके इस गुलदान से बच गया। वाह! क्या इस्तकबाल किया जा रहा है शौहर का। अज़म ने शरारत से लीजा की जानिब देखते हुए कहा, जो चौधरी का ख़ानदानी शरारा कुर्ती पहने दुपट्टे से बेनियाज फिरी शेरनी बनी से घूर रही थी। फिर इसने बैठ के साइड टेबल से एक चाकू पकड़ा और अज़म के करीब आकर उसे हमला करना चाहा, लेकिन अज़म ने इसका हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में पकड़कर इतनी बुरी से मरोड़ा के इसकी चीख निकल गई और चाकू इसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। आराम से बेगम साहिबा, इस देसी मर्द से मुकाबले के लिए बहुत कमज़ोर है। तुम्हारा ये विलायती जिस्म एक झटके में तोड़ मोड़ कर रख दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अज़म इसका हाथ इसकी कमर के पीछे ले गया,
जिसकी वजह से लीजा इसके सीने से टकरा गई, मगर फिर भी इसकी आंखों की कम नहीं हो रही थी। मुझे तुम्हारा का एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, जाहिल लड़की, छोड़ो मुझे वरना जान ले लूँगी तुम्हारी। लीजा चिटपटे हुए चिल्लाई, लेकिन खुद को छुड़ाना तो दूर, अज़म की ताकतवर गिरफ्त में वो खुद को हिला भी नहीं पाई थी। ना मेरी विलायती चूज़ी, आज तुम्हारी अंग्रेज़ी नहीं चलेगी। आज तो न सिर्फ मेरी बात सुनोगी बल्कि इसे समझे बगैर ही समझ भी लोगी। अज़म इतना कहता हुआ लीजा के इतने करीब हुआ कि लीजा सांस लेना भूल गई और हैरत से आंखें फाड़े से देखने लगी। तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें मेरे पास उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब चाहो या ना चाहो तो मेरे पास ही रहना है। अज़म ने अपने होंठ लीजा की नाक पर रखे तो लीजा फिर से झपटना शुरू हो गई, मगर इसकी कोशिश बिल्कुल बेकार थी। अब तुम अपने सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक मेरी मलकियत हो। मेरी अमानत पे खयानत का सोचना भी मत, वरना तुम्हारी जान लेने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। अज़म इसे धमका रहा था, लेकिन इसके होंठ लीजा के चेहरे पर गुस्ताखियां करके इसे ना चाहते हुए भी कांपने पर मजबूर कर रहे थे। तुम मुझे कभी भी कैद नहीं कर पाओगे। सुना तुमने एक बार यहाँ से छूट गई तो हरासा करने के केस में डालूंगी ना, तुम पर याद रखोगे। अज़म को इसकी बात समझ तो नहीं, लेकिन केस लफ्ज़ को समझ कर वो कहकमा लगा कर हंसा था। चलो विलायती चीज़ें, तुम्हें केस करने की ठोस वजह दो। इतना कहकर अज़म ने इंतहाई शिद्दत से इसके गुलाबी होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया कि लीजा को लगा इसका दिल उछल कर हलक से बाहर आ जाएगा। पहली बार किसी मर्द को अपने इतने करीब महसूस कर कर वो काँप कर रह गई थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने से नहीं थी। इसलिए जब वो खुद को ना छुड़ा पाई तो इसने अपने दांत अज़म के होठों पर काट दिए। अज़म ने इसके होठों से दूर होकर अंगूठे से अपने होठ को छुआ, अंगूठे पर खून देकर मुस्कुरा दिया। वाह मेरी देसी शेरनी। अज़म ने लीजा की जानिब देखा, जो इसे ऐसे देख रही थी जैसे आंखों से चैलेंज कर रही हो कि फिर से छू कर बताओ मुझे, चाहे हमारे रिश्ते में हमेशा सिर्फ नफरत ही होगी, लेकिन तुम्हारी सारी ज़िंदगी बहुत दिलचस्पी से गुजरने वाली है। अज़म ने शान से मुस्कुराते हुए छोटी सी हूरों का हुस्न रखने वाली लड़की को देखा, जो अपनी नज़रों से ही इसे मारने का अज़म रखती थी। अगर अज़म शेर था तो वो नाजुक सी लड़की भी शेर बनने को तैयार थी। अज़म की नज़र इसी कलाई पे पड़ी, जो अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। एक दूसरे का अक्स है हम दोनों, बिल्कुल मेरी जैसी है तुम, सरफरी सी गज़ल अज़म चौधरी, माई नेम इज़ लीजा मलिक। लीजा ने अपना हाथ खींच कर कहा। वो जानती भी नहीं थी कि अब इस शेरनी वाले रूप में वो अज़म की दिलचस्पी मज़ीद बढ़ा रही थी। तुम खुद को जो भी समझो, मेरे लिए तुम गज़ल हो। अब मेरी ज़बान से इस नाम को सुनने की आदत डालो, जहाँ ने जहाँ का, क्योंकि अब सारा ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ ही तो गुजारनी है। अज़म ने इसे सर से लेकर पैर तक ऐसे देखा कि लीजा का रूम रूम काँप गया, और फिर अज़म इस अपने गुस्से में करने के लिए अकेला छोड़कर चला गया। आन अपने कमरे में के कोने में समटी बैठी थी। वो कल से ही ऐसे ही अपने कमरे में बंद थी। अशमान की नाराज़गी के ख्याल से सांप बनकर डस रहा था, लेकिन वो क्या करती, इस नाराज़गी की वजह भी तो वही थी। अशमान की बातें याद करके आन फिर से टूट फूट कर रोने लगी। अचानक ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे आन ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन सामने शाहिद को देखकर वो गुस्से से अपनी मिठिया बीत चुकी थी। क्यों आए हैं आप जैसा कहा था वैसा तो कर तो दिया मैंने, अब चाहे और अपनी बेटी के लिए मेरी बर्बादी की खुशियाँ मनाएं आप। आन शाहिद को देखते अपना सारा गुबार इन पर निकाल चुकी थी। सारा गुस्सा भी तो नहीं था, ना वो अपनी माँ की कसम देकर मजबूर करते, ना वो अशमान को खुद से तो इतना बदगुमान करती। शायद खामोशी से आन के पास है और कुछ शॉपिंग बैग्स इसके सामने रखे कि तुम्हारे लिए लाया हूँ बेटा। शायद की बात पर आन ने मुर्दा आंखों से इन शॉपिंग बैग्स को देखा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, याद है आपको अपने हर फर्ज से आज़ाद कर चुकी हूँ मैं। अपनी बेटी की ये बेरुखी शायद है दिल को चीर गई, लेकिन वो इस बेरुखी के काबिल थे। इसमें तुम्हारे निकाह का जोड़ा आन बेटा, आज तुम्हारा निकाह है। शायद की बात पर आन के आंसू इसकी आंखों में अटक गए थे। वो हैरत से देखने लगी। मेरा निकाह किससे? अशमान से बेटा, और किससे हो सकता है तुम्हारा निकाह? पैदा होने से पहले इसी के नाम लिख दी गई थी तुम। अब आन ने आंसू भुलाकर हैरत से इन शॉपिंग बैग्स को देखा। अमान ने मना किया था। शायद ने मुस्कुराकर इसके इस तरह को देखा। इन्हें खुद से नफरत हो रही थी कि अपनी खुदगर्जी में वो किसी इस मासूम से इसकी ज़िंदगी छीनना चाह रहे थे। वो क्यों मना करेगा, वो तो तैयार बैठा है ना के लिए, बस तुम देर ही लगा रही हो। आन ने हैरत से शाहिद को देखा। कल तक तो वो शख्स लीजा के इसके पैरों में गिर रहा था, और अब खुद इसका निकाह आसमान से करवाने के लिए तैयार था। और लीजा, इसका क्या आप इसकी परवाह नहीं रही आपको? लीजा के ज़िक्र पे शाहिद के चेहरे पे गमगीन मुस्कुराहट आई थी। तुम इसकी परवाह मत करो बेटा, अब वो कभी तुम दोनों के दरमियान नहीं आएगी। कोई भी तुम दोनों के दरमियान नहीं आ सकता। जब खुदा ने ही तुम दोनों की किस्मत मिलाई तो कोई कुछ भी कर ले, तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। आन अभी भी हैरत से शाहिद के बदले हुए तेवर देख रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि ये शख्स एक पल में बदल गया? आप ये सब छोड़ दो और तैयार हो जाओ, फिर अपना फ़र्ज़ पूरा करके मुझे कनाडा वापस जाना है। शाहिद ने आन का हाथ पकड़ कर इसे खड़े करते हुए कहा, लेकिन आन ने फ़ौरन अपना हाथ छुड़वा लिया। बेसाख्ता शाहिद की आंखों में दो आंसू आ गए। अपनी इस औलाद की गई हर ज़्यादती, हक तलफ़ी इन्हें याद आने लगी।
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। जानता हूँ जितनी ज़्यादती मैंने तुम्हारे साथ की, इसके बाद मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरी यही इल्तिजा है। इतना कहकर शायद अपने आंसू पोंछते कमरे से बाहर चले गए और आन ने इनकी बातों को सब सोचने के बाद इन शॉपिंग बैग्स को देखा। पहला शॉपिंग बैग खोलने पर इसके निगाह लाल रंग के लहंगे पर पड़ी तो होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। मैं आपको मना लूँगी मान, देखिएगा जिस रूप में आपने मुझे पहले हमेशा से देखा चाहा, इस रूप को मैं देखने के बाद आप कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं रह सकेंगे। मैं आपको मना लूँगी। आन ने सोचा और वो जोड़ा पकड़कर तैयार होने चली गई। आज वो अपनी मोहब्बत के होने इसे मनाने के लिए पूरा-पूरा सजना चाहती थी। आज मैं बहुत सुकून में हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल ने से एक बोझ उतर गया है। कल इस रात के खाने के बाद अम्मा भी को दवाई दे रही थी जब अम्मा भी ने इत्मीनान से कहा, जी बाजी इस दिन इतना ज़्यादा रो रही थी, अच्छा है नहीं इनका निकाह हो गया, अब वो अपने सर के साए को मना लेंगी। कनीज़ की बात है, अम्मा भी ने इस बात में सर हिलाए तो उन्हें भी यकीन था कि अशवान की सारी नाराज़गी दूर कर देगा। आप आराम कर लें, आप काफ़ी थक गई होंगी ना। कनीज़ ने अम्मा भी को लेटाकर इन पर चादर ठीक से देते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे अच्छे नसीब करे बेटा, किसी नेक माँ की बहुत साले औलाद हो तुम। अम्मा भी ने कनीज़ के सर पे हाथ रखे से दुआ दी। कनीज़ इनकी खिदमत ही इतना करती थी कि अम्मा भी के दिल से इसके लिए दुआ निकलती थी। अम्मा भी के सोने के बाद कनीज़ ने पानी का जग देखा जो बिल्कुल खाली हो चुका था, इसलिए सर पे दुपट्टा लेते हुए कमरे से बाहर निकली और किचन में पानी लेने की गर्ज से जाने लगी। लेकिन गुजरते हुए अचानक इसकी निगाह सुल्तान के कमरे की तरफ बढ़ी तो इसे एक झलक देखने की चाह में दिल में उमड़ आई। वैसे भी इसने कितने दिनों से सुल्तान को नहीं देखा था, बस एक बार इन्हें देखकर आ जाऊंगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। कनीज़ ने आहिस्ता से गुस्से का और फिर यहाँ वहाँ देखते हुए सुल्तान के कमरे की जानिब चल दी। दरवाज़ा पहले से खुला होने की वजह से इसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और कमरे में झाँकने लगी, मगर सामने का मंज़र देखकर इसके माथे पर बल आ गए। सुल्तान बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन टाँगें बेड से नीचे थी और उसने जूते भी नहीं उतारे थे। शायद थकावट के बायस वो जैसे ही कमरे में आया था, वो वैसे ही लेटकर सो गया था। ऐसे तो साईं जी थक जाएँगे। कनीज़ ने अपने नाखून चबाते हुए सोचा, इसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन अगर वो उठ गए तो गुस्सा होंगे। मैं इनकी इजाज़त के बगैर इनके कमरे में क्यों आ गई? कनीज़ बुरी तरह से बेचैन हो चुकी थी। वो सुल्तान को इस हालत में देख भी नहीं सकती थी। मैं आहिस्ता से इनके जूते उतार दूँगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। कनीज़ ने सोचा और दरवाज़ा खुलकर कमरे में दाखिल हो गई। आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते हुए सुल्तान के पास आई, उसके पैरों पे बैठकर इसके जूते उतारने लगी। शूज़ उतारने के बाद इसने अपना हाथ इसकी जुराब में रखा, लेकिन अपनी टाँगों पर किसी की आँखों का लम्स महसूस करके सुल्तान की आँख खुल गया। उसने हैरत से कनीज़ को देखा जो मुस्कुराते हुए इसके पैरों से जुराबें उतार के अब इसका पाँव अपने दुपट्टे के कोने से साफ कर रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? सुल्तान की आवाज़ पे कनीज़ खौफ से उछल पड़ी और खड़े होकर बुरी तरह से घबरा कर सुल्तान को देखने लगी। सच साईं वो आप जूते पहनकर सो गए थे। कनीज़ ने फ़ौरन अपनी नज़र झुकाकर कहा। उसे अपने सामने देखा सुल्तान को ऐसा लगा कि इसका सबसे हसीन ख्वाब सच्चाई का रूप धारे इसके सामने खड़ा है। इसलिए सुल्तान ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थामा और हल्के से झटके से इसके नाजुक वजूद को खींचकर खुद पर गिरा लिया। इसकी इस हरकत पे कनीज़ का दिल उछलकर हलक में आ गया। सच साईं जी क्यों आई तुम यहाँ? मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। सुल्तान की बात पे कनीज़ ने एक घबराई सी निगाह इस पर डाली, फिर अपनी नज़रें झुका गई। माफ़ कर दें साईं जी, गलती हो गई, नहीं करना मुझे तुम्हें माफ़, मुझे तुम्हें सज़ा देनी है। सुल्तान ने अपने हाथ इसके सर के पीछे रखा और इसके होंठ अपने होठों के करीब रख लिए। कनीज़ ने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं साईं जी, मैं माफ़ी दें, फिर ऐसा नहीं करूँगी। सुल्तान ने पुरस्तेश निगाहों से इसके होठों और पलकों की ठठराहट को देखा। बाहों में फूलों जैसा नरम व मुलायम हलाल वजूद, ऊपर से रात की तन्हाई पे ये सब बातें सुल्तान हो बेखुद कर रही थी, इसे मजबूर कर रही थी खुद पे बंदा पैरा हर पैरा तोड़कर अपनी सारी शिद्दतें इस नाजुक लड़की पर निछावर कर दे। एक गहरा सांस लेकर सुल्तान ने अपना चेहरा इसकी गर्दन पर छुपा लिया। अपनी गर्दन पर सुल्तान की दाढ़ी और मूंछों की चुभन महसूस करती कनीज़ बेजान होने को थी। सजा साईं जी, कनीज़ की आवाज़ में एक इल्तिजा थी जिसे बताना चाह रही कि इसका जुर्म सहने के लिए वो बहुत कमज़ोर है। थक चुका हूँ मैं नूरी, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे एक पल का सुकून चाहिए। सुल्तान ने इतना कहकर अपने होंठ कनीज़ की गर्दन पर रखे तो वो खुद ही में ही सिमट गई थी। आप मुझे छोड़े, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, फिर आपकी थकान उतर जाएगी। अगर ना उतरी तो मैं सरसों के तेल की मालिश कर दूँगी, कुछ भी करना पड़े मैं आपकी थकान ज़रूर उतार दूँगी। कनीज़ खुद नहीं जानती थी कि अपनी मासूमियत में से क्या कुछ कह चुकी थी। ठीक है, उतार दो मेरी थकान। सुल्तान ने इसकी गर्दन से होंठ हटाकर इसके पनखुड़ियों जैसे होठों को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, लेकिन दरवाजे पे होने वाली दस्तक पर वो होश में आया और जल्दी से कनीज़ को अपने साथ लेकर उठ खड़ा हुआ। ओह शिट! अगर किसी ने यहाँ से देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा इसके बारे में। सुल्तान को खुद से ज़्यादा कनीज़ की परवाह थी। वो नहीं चाहता था कि कोई इसे रात के इस पहर सुल्तान के कमरे में देखकर इसकी किरदार कशी करे, इसलिए उसे लेकर ड्रेसिंग रूम में गया और उसे वहाँ खड़ा करके दोबारा
दोबारा दरवाज़ा बंद करने लगा। सुनो, बाहर मत आना, ना ही कोई आवाज़ करना, जैसे यहाँ हो ही नहीं। सुल्तान के समझाने पे कानिस ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, लेकिन तब तक सुल्तान दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। कमरे के दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोला। सामने मुस्कुराती हुई अनाबिया को देखकर सुल्तान के माथे पर बल आए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाबिया इसके सवाल का जवाब दिए बगैर कमरे में दाखिल हुई, हाथ में पकड़ी ट्रे इसके सामने की। वो आप इतने बिजी थे कि आपने खाना नहीं खाया था, इसलिए आपको खाना देने आई थी। सुल्तान ने गहरा सांस लेकर इसके हाथ में पकड़ी ट्रे को देखा और फिर इसे अपने हाथों में ले लिया। थैंक्स। सुल्तान का बस नहीं चला था कि इसे उठाकर अपने कमरे से बाहर फेंक दे, लेकिन वैसा करके अपनी माँ की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता था। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो मेरा फ़र्ज़ है। सुल्तान का दिल किया कि इसे कहे नहीं, ये सब बस इसकी नूरी का फ़र्ज़ है। सुल्तान पर इसका हक है, लेकिन वो काश काश वो ऐसे कहने की हिम्मत रखता। वैसे सुल्तान, आज आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ब्लू कलर का ज़्यादा पहना कर आपको सूट करता है। नाबिया ने एक अदा से कहा, जबकि अपनी इस तारीफ से सुल्तान ने बने परेशानी से ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा। रात काफ़ी हो गई, आई थिंक तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। कोई तुम्हें यहाँ देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सुल्तान की बात पर अनाबिया ने गहरा सांस लेकर इस बात में सर हिला और वहाँ से चली गई। इसके जाते ही सुल्तान ने दरवाज़ा लॉक किया और ड्रेसिंग रूम के पास आकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते इसकी बेचैनी निगाह कनीज़ पे पड़ी, जो अपना मुँह बसोरे वहाँ खड़ी थी। आपने अभी भी इनसे दोस्ती नहीं तोड़ी ना? वो अभी भी आपकी फांस में है। इसके फियांसे का लफ्ज़ का कत्ल करने पर सुल्तान मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने कनीज़ को कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे क्या जवाब देता? वो चाहकर भी अनाबिया से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकता था। उसे कैसे बताता कि वो किस कदर मजबूर इंसान की बीवी बन चुकी है। आपने मुझे यहाँ क्यों बंद किया? कनीज़ ने नज़र झुकाते हुए पूछा। अगर वो तुम्हें रात के इस वक्त पहर यहाँ देख लेती तो मैं इसे क्या जवाब देता? तुम यहाँ क्यों आई हो? सुल्तान ने अपने क़स्सा इसे सच बता दिया। तो आप बता देते कि मैं आपकी मैट हूँ, ये कोई बुरी बात तो नहीं। सुल्तान का दिल करता है इसके मासूम चेहरे से सारी शिकन दूर कर दे। तुम्हें अब अम्मा भी के पास जाना चाहिए, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। सुल्तान के हुक्म पर कनीज़ ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया और ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए, लेकिन मेज़ पे पड़े खाने को देखकर इसके माथे पर बल आए। अब ये खाना मत खाइएगा साईं जी, आपको भूख लगी हो तो मुझे बताया करें, आपकी भूख मिटाना मेरा काम है। कनीज़ के मासूम शिकवे पे सुल्तान ने ठंडिया भरी। वो कैसे मासूम में थे, इसकी जज्बात इतनी आसानी से भड़का देती थी। अम्मा भी के पास जाओ नूरी, वरना सच में अपनी भूख मिटाने लग गया तो जान निकल जाएगी तुम्हारी। सुल्तान ने हक से इस नाजुक वजूद को देखते हुए कहा जो उसकी मलकियत था। जो हुक्म साईं जी। कनीज़ ने मुंह बसोर कर कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन दरवाजे पहुँच के इसने मुड़कर एक नज़र सुल्तान को देखा और अपना मुँह फुलाकर नाक चढ़ा ली। नीला रंग मत पहना करें, ज़रा अच्छे नहीं लगते इसमें। कनीज़ मसनूई बेरुखी से कहते हुए वहाँ से चली गई। उसकी नाराज़गी के इज़हार पर सुल्तान मुस्कुरा दिया। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बनती जा रही थी ये नाजुक सी लड़की, और सुल्तान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश इसकी होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा बेबस था। सुल्तान ने मुड़कर खाने की इस ट्रे को देखा तो इसे इस खाने के साथ साथ अनाबिया से भी नफरत हुई, जिसकी वजह से इसके ख्वाबों की परी इसकी नूरी से रूठ चुकी थी। सुल्तान ने बगैर सोचे समझे ट्रे को पकड़ के मेज़ से फेंक दिया और सब कुछ एक चनाके से टूट गया। वो हर चीज़ को ऐसे ही मिटा देना चाहिए था जो इसकी नूरी को परेशान करती थी। काश वो ऐसा सबके सामने करने की हिम्मत भी रखता। अशमान के कमरे में बैठी वो बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। आज इन दोनों की बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो दोनों ताक़यामत एक दूसरे के नाम लिख दिए गए थे। आज जहाँ इस बात पर खुदा का हज़ारों बार शुक्र अदा कर रही थी, वहीं अब अशमान की नाराज़गी को लेकर काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन इसे यकीन था वो अपने रूठे साजन को ज़रूर मना लेगी। आज जानती थी कि अशमान इससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह नहीं सकता। वो तो अपनी आन पर जान छिड़कता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आन की सोचों का तसलसल टूटा। इसने घबरा कर अशमान को देखा, जो संजीदगी से कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाज़ा लॉक कर चुका था। इन दोनों में बदले रिश्तों को महसूस करके आन खुद में ही सिमट गई थी। हालांकि अरशमान ही तो इसका सब कुछ था, इसका सबसे अच्छा दोस्त, साथी, मोहब्बत, सब कुछ वही था। फिर से ये झिझक और शर्म आन के लिए एक नया तजुर्बा था। अरशमान को अपने जानिब आता देखकर इसने अपना सर मज़ीद झुका लिया। वो जो रूठे साजन को मनाने का सोचे बैठी थी, अब शर्म व हया से इसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अमान। आन ने इसे पुकारा, लेकिन अरशमान ऐसे ड्रेसिंग रूम की जानिब चला गया जैसे ना तो इसे इसे सुना हो और ना ही वो वहाँ पर मौजूद हो। इसकी इस बेरुखी पर आन की पलकें आंसू से भर गई। थोड़ी देर के बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया। बैठ की एक साइड पर रखकर इसने वहाँ से आन का लहंगा हटाया, वहाँ लेटकर अपनी बाजू अपनी आंखों पर रख गया। मान आन ने फिर इसे पुकारा, लेकिन वो किसी बात का जवाब देने की बजाय से बिल्कुल फरामोश किया वहाँ लेटा था। आन ने खुद पर से घूंघट हटाकर एक घायल निगाह अरशमान को देखा और अपना नाजुक हाथ इसके मजबूत बाजू पर रखा। इतना नाराज़ है मुझसे कि मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? आन ने रोंदी हुई आवाज़ में पूछा, लेकिन अरशमान अभी भी इसे फरामोश किए लेटा हुआ था। मान देखे तो सही, आपकी आन दुल्हन बने आपके पास बैठी है। अरशमान ने अभी तक इसकी बात का जो जवाब नहीं दिया था, ना ही अपनी आंखों से बाजू को हटाया। मान प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी कि आप मुझसे यूँ पेश आएँ। प्लीज़ मान, आपकी ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या यही थी आपकी मोहब्बत? आप एक बार
बार मुझे माफ़ कर सकते हैं। अब की बार आयशा मान ने अपनी आँखों से हाथ हटाकर आन को देखा, जो आन अपने आँसू पोंछकर मुस्कुरा दी। आप मुझे कौन-सी मोहब्बत? आयशा मान आन की बात काट कर कहा तो आन हैरत से देखने लगी। जिस मोहब्बत की तुम बात कर रही हो, इसे मैं इस दिन दफना आया था, जिस दिन तुमने मुझे किसी और का होने का कहा था। आयशा मान की बात पे आन का दिल कट के रह गया। मान बाबा ने मुझे अम्मी की कसम दी थी, मैं क्या करती? आन ने रोते हुए कहा तो आयशा मान के होठों पे एक तंज़िया मुस्कुराहट आई। यानी अगर तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम देकर मेरी जान लेने का कहते तो तुम वो भी कर गुज़रती। आन ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। बल्कि जो तुमने किया आन मलिक, वो तो जान लेने से भी ज़्यादा तकलीफ़ दे था। वो मोहब्बत जो मैंने अपनी आन से आज तक की थी, तुमसे किसी और को मोहब्बत मुझसे ज़्यादा अहमियत देकर मेरी इस मोहब्बत को इंतहाई बेरहमी से मार दिया। अब अपने मान को तलाश मत करो, तुम इसे इस दिन मार चुकी हो। आयशा मान की बात पर आन फूट-फूट कर रो दी, अपना सर इसके सीने पे रख दिया। प्लीज़ मान, एक बार मुझे माफ़ कर दे, मैं वादा करती हूँ फिर कभी किसी को आपसे ज़्यादा अहमियत नहीं दूँगी। प्लीज़ बस मेरी ये गलती माफ़ कर दें। आन मज़ीद आयशा के पास लिपट गई, लेकिन आयशा ने अपने हाथ इसके कंधों पर रख के सख्ती से खुद से दूर कर दिया। यकीन करो, तुम इस कमरे से बाहर फेंक कर अपना और तुम्हारा तमाशा नहीं बनाना चाहता, इसलिए बेहतर ये है कि दूर रहो मुझसे, वरना ये भी कर गुज़रूँगा। आन ने रोकर इसकी जानिब देखा तो आयशा ने इसे कोहनी से पकड़ कर बेड से उतारा और लाकर कमरे के दरमियान फेंक दिया। खुद पर और मुझ पर एक एहसान करना, मुझे जितना हो कम हो सके इतना कम नज़र आना, वरना यकीन जानो अपने साथ-साथ तुम्हारा भी तमाशा बना दूँगा। ये शादी मेरे लिए बस एक सज़ा है, इस लड़की के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की सज़ा, जिसने मोहब्बत के दावे तो बहुत किए लेकिन निभा ना सकी। इतना कहकर शमान बेड पर जाकर लाइट बंद करके लेट गया और आन इसकी कदर सदमरी पर सिसक कर रोने लगी। इसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था, जिस शमान से ने मोहब्बत पूरी शिद्दत से की थी, वो नफरत भी इतनी शिद्दत से करेगा। पूरी रात वो दुल्हन बनी वही फर्श पे बैठकर रोती रही, लेकिन इसके पास आना तो दूर, शमान ने तो इसे देखा तक नहीं था। वो जिसकी मोहब्बत में आन के जीने का सहारा थी, ले इसकी बेबदरुखी आन से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सितमगर इस बात से वाकिफ ही नहीं था, वान की जीने की वजह था। दिन रात कली हो तेरे पीछे चली हूँ, कदरा दा कर सजे प्यार दा, हर वेले रोंदी दा, तेनों पर रोंदी मिदा, सोचा रवा में गला यार दी बहन होंदा निसहार, ए विछड़ा मेरा यार। आन कितनी देर इसे बेड पे सोए देखती रही, फिर अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर रोती। इसे अपनी खता की सज़ा न जाने कब तक भुगतनी थी। अम्मा भी ये सेब खाएं, आप आपके लिए काटे हैं। अम्मा भी ने हैरत से कनिज़ के सूजे हुए मुंह को देखा, जो फजर के लिए उठी थी तब से ही कनिज़ का मुंह बना हुआ था। क्या हुआ हमारी प्यारी सी नूरी को मुंह क्यों उतरा हुआ है, मुझसे खफा हो क्या? अम्मा भी ने प्यार से उसका चेहरा हाथ में थाम कर पूछा। तौबा, मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ भला? बड़ों से नाराज़ होकर मुझे दोज़ख में जलना है? नहीं नहीं अम्मा भी, मैं आपसे ज़रा-सा नाराज़ नहीं। अम्मा भी के चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट आई। कनिज़ हमेशा ही अपनी मासूम बातों से इनको मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया करती थी। तो फिर क्यों उतरा हुआ मेरी गुड़िया का मुँह? अम्मा भी ने चाह से इसके चेहरे पे आए बाल इसके कान के पीछे करते हुए पूछा। मैं साईं जी से नाराज़ हूँ, वो ज़रा अच्छे नहीं है। कनिज़ अपना मुँह फैलाया और गुस्से में हाथ पे पकड़े सेब के छोटे-छोटे टुकड़े करने लगी। अरे ऐसा क्या किया सुल्तान ने, मुझे बताओ ज़रा, मैं इसकी कान खींचती हूँ। अम्मा भी की बात पे कनिज़ का दिल किया इन सबको सब कुछ बता दे। पता है वो मुझे कितनी खुशी से बता लेते हैं कि वो अनाबिया बाजी इनके फांसने है, लेकिन इन्हें नहीं बताते कि मैं इनकी मेट हूँ। भला मेट इतनी बुरी होती है क्या? इसे आप सबसे छुपा कर रखो। कनिज़ की बातें अम्मा भी के माथे पर बल आए, क्योंकि वो इसकी आधी बात समझने से कासिर थे। फांसे बेटा, ये फांसने क्या होते हैं? वही जो अनाबिया बाजी साई बाजी की हैं, आपको नहीं पता क्या? अम्मा भी को कुछ सोचने पर अंदाज़ा होगा, वो फियांसे कह रही है। ओह अच्छा हाँ, मुझे याद है। कनिज़ का मुँह इनकी मज़ीद बात पर भूल गया। आपको पता है वो किसी को नहीं बताते कि मैं इनकी मेट हूँ। भला अब मैं क्या करूँ? जब इनकी मेट हूँ तो इन्हें बताना चाहिए ना। ये सब आपको मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो मैं चुप तो नहीं रह सकती ना। अम्मा भी ने मुस्कुराकर कनिज़ को देखा, तो तुम सबको कह दिया करो कि तुम मेरी मेट हो, मैं भी इस बात से नाराज़ नहीं करूँगी। अम्मा भी ने हल बताया, लेकिन कनिज़ को पहले आंखें फैलाकर हैरान होता देखा, फिर कैफ में लगाकर हंसता हुआ देखकर हैरान रह गई। आपकी मेट कैसे हो सकती हूँ मैं? अम्मा भी, मुझे साईं जी अपने साथ लाए थे, मैं तो सिर्फ इनकी मेट हो सकती हूँ ना। कनिज़ ने चेहरा झुकाकर फिर से सुल्तान के ज़िक्र पर गुलाबी हो रहा था। नहीं मेरा बच्चा, तुम जिसके पास रहकर इसके काम करो, इसकी देखभाल करो, तुम इसकी मेट हो सकती हो। जैसे तुम मेरा ख्याल रखती हो, तो मैं सबसे ये कहती हूँ ना कि ये मेरी मुलाज़मा है। अम्मा भी ने इसे समझाना चाहा, लेकिन इनकी बात पर कनिज़ के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी और रंग बिल्कुल ज़र्द पड़ गया था।
मम्मा मैट अंग्रेजी में मुलाजमा को कहते हैं क्या? इसकी हालत देखकर अम्मा भी परेशान हो गई। ऐसा लगता है वो अगला सांस तक नहीं ले पाएगी। हाँ बेटा, मेड मुलाजमा को कहते हैं। क्यों, तुम्हें उस सुल्तान ने कुछ और बताया था क्या? अम्मा भी के पूछने पर कनीज अपना चेहरा झुका गए। कितने आंसू उसकी आंखों से बहकर इसके हाथों पर गिरे। दिल था कि अपनी इस तसली पर खून के आंसू रो रहा था। अब वो अम्मा भी को क्या बताती। इनका पोता इसकी अनपढ़ होने का फायदा उठाकर इसे बीवी होने के बावजूद एक मुलाजमा का दर्जा देता रहा, और वो पागल कितने अमान से खुद को इसकी मेड कहती रही थी। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे मुलाजमा ही बताया था। कनीज ने झूठ बोला, जबकि इसकी रोंदी हुई आवाज़ और उसके आंसू अम्मा भी को परेशान कर रहे थे। मैं इनकी मुलाजमा हूँ, मैं वही हूँ जो साईं मुझे बनाना चाहें। अम्मा भी ने परेशान से इसका हाथ थामा। उसके इस गम की वजह समझ नहीं पा रही थी। मैं कैसे भूल गई अम्मा भी कि मैं कनीज हूँ, और कनीज मुलाजमा के सिवा कुछ नहीं हो सकती। वो कुछ भी कर लेंगे, ले रहेंगे हमेशा कनीज ही। इतना कहकर कनीज की बस हुई थी और उठकर कमरे से बाहर आ गई। हवेली के एक सुनसान कोने में बैठकर अपना दुपट्टा मुंह में दिए से सक के रोने लगी। सुल्तान का यूं इसकी मासूमियत का फायदा उठाना इस मासूम के दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ चुका था। अपना आप हद से ज्यादा बेवक्त लग चुका था। इसका शौहर ही इसे अपने काबिल नहीं समझता, इसलिए इसे बीवी की बजाय मुलाजमा का दर्जा दिया था। काश वो भी सुल्तान के काबिल होती, काश वो भी पढ़ी लिखी होती, तो सुल्तान सबको बेफिक्र होकर शर्मिंदगी के बगैर बता पाता कि वो उसकी बीवी है। सुल्तान के काबिल ना होना भी इसे अपना ही कसूरवार लग रहा था, क्योंकि वो कनीज थी। भला कनीज भी अपने सुल्तान को बुरा समझ सकती थी? वो तो बस अपने सुल्तान के पैरों की धूल हुआ करती थी, और आज इसका सुल्तान ने साबित कर दिया था कि वो अपनी कनीज को बस अपने पैरों की धूल समझता है। आन की आंख खुली तो वो बेड पर मौजूद थी। इसका रूसी जोड़ा अभी भी इसके वजूद पर था। रात का गुजरा हर मंजर याद करने पर इसकी आंखें फिर से भीग गई। वो रोती उसी सख्त की फर्श पर ही सो गई थी, और शिवानी से बेनियाज बेड पर लेटा रहा था। आन को याद था कि फर्श पर सोई थी तो बेड पर कैसे आई। क्या शिवानी ने इसे दिल ने एक हल्की सी उम्मीद दिलाई, तो अपने आंसू पोंछ कर जल्दी से उठ खड़ी हुई और फ्रेश होने के गर्ज से वॉशरूम में जाने लगी। जब अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे आन का ध्यान दरवाजे की जानिब गया। शिवान तो कब का उठ कर काम के जा चुका, और तुम भी उठ। आन पर ध्यान पड़ती हरीन बेगम जो कमरे में दाखिल होती शुरू हो गई थी, खामोशी से इसे सैर से लेकर पैर तक देखने लगी। क्या बात है, मैंने सोचा था कि जितना तरसना और मुश्किलों के बाद तुम दोनों की शादी हुई है, तुम मुझे शर्माई शर्माई से मिलोगी, लेकिन यहाँ तो मंजर ही कुछ और बयान कर रहा है। फरीन बेगम ने आन के पास आकर इसके जेवरात को छूते हुए कहा जो जू के तू के थे। क्या बात है शमान को आखिरकार अकल आ गई, तुम इसके काबिल नहीं, या तुम ही मेरे बेटे की हर खिलाफी पर उतरी हो। फरीन बेगम की आवाज़ तन से भरपूर थी। नहीं नहीं बड़ी अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आन को समझ आया वो क्या क्या, इसलिए खामोश हो गई। देखो बीबी, पहले ही अपने तमाशों में तुम मेरे बेटे को 30 साल का कर चुकी हो। अब आखिरकार तुम दोनों की शादी हो ही गई, तो इसकी कदर करो। शहजादा है मेरा बेटा, जो मैंने तुम जैसी को दे दिया। फरीन बेगम ने हकारा से आन को सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा, और आन हमेशा की तरह इनकी बातों का कड़वा घूंट बनाकर रह गई। अशमान ने तो सुबह सवेरे काम पर जाकर ही साबित कर दिया कि इसे इसकी शादी की कितनी खुशी है। तुम भी ज़रा ये कपड़े बदल लो और आकर मेरे साथ नाश्ते में मदद करो। अनाबिया की तबीयत ठीक नहीं। फरीन बेगम की बात पर आन ने बात में सर हिलाते वो वहाँ से चली गई, और आन की तब से इनके अटके आंसू बह निकले। फ्रेश होकर इसने कपड़े बदले और फरीन बेगम के साथ नाश्ता बनाने चली गई। वो नाश्ता रखी रहती, जब इसे देखकर अम्मा भी हैरान हो गई। आन बेटा, तुम क्यों ये सब कर रही हो? अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। अम्मा की बात पर आन ने परेशानी से फरीन बेगम की जानिब देखा। तो क्या हो गया अम्मा भी, अब इस घर के बहू के क्या आज नहीं तो कल सभी से संभालना है। वैसे भी कौन सा कहीं और से ब्याह कर आई है, एक कमरे से दूसरे कमरे में तो गई है। अम्मा के बुरी तरह से घूरने पर फरीन बेगम खामोश नहीं हुई थी। बिल्कुल जैसे अनाबिया एक कमरे से ब्याह कर दूसरे कमरे में जाएगी, फिर तुम इसे भी अगले दिन काम पर लगा देना, ठीक है? अम्मा की बात पर फरीन बेगम दांत कचकचा के रह गई, लेकिन कुछ कह ना पाई। आन बेटा, कमरे में जाकर ज़रा भारी कपड़े और जेवर पहनो। अब तुम मलिक ख़ानदान की बेटी नहीं बहू हो, और तुम इस बात का ख्याल होना चाहिए। आन ने इस बात में सर हिलाया, अपने कमरे की जानिब चली गई। कमरे में आकर इसने अलमारी खोली तो निगाह इन कपड़ों पर पड़ी जो वो और अशमान मिलकर लेकर आए थे। इन कपड़ों को देखकर आन की पलकें फिर से भीग गई। वो दोनों कितने खुश थे, कैसे मोहब्बत और चाहत से उन्होंने एक दूसरे के होने के ख्वाब देखे थे। इतने लोगों की नज़र में आने के बाद भी एक दूसरे के तो हो गए थे, लेकिन मोहब्बत तो शायद लोगों की हासिल नज़रों की नज़र हो गई थी। आन शाहिद की आवाज़ पर आन ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और संजीदगी से मुड़कर इन्हें देखा। जी। आन का लहजा काफ़ी रूखा था। कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हें बताने आया था कि मैं आज वापस जा रहा हूँ, और जाने से पहले मैं आखिरी मरतबा तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शाहिद ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, ये मेरे लिए इतना आसान है, आपके लिए जो छोटी सी बात है, इसने मुझे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। आन शाहिद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आन ने अपना हाथ उठाकर इन्हें मज़ीद कुछ कहने से रोका। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएँ, अपनी इस दुनिया में वापस चले जाएँ जिसके लिए आपने मुझे और
अम्मी को छोड़ा था। मुझे आपके बगैर जीने की आदत है, आन ने बेरुखी से कहते हुए अपना रुख मोड़ लिया और शायद की गहरी आंखों के साथ मुड़कर वहाँ से चले गए। इनकी जाती आन भी फूट फूट कर रो दी। आखिर वो ही था, इसका एक मान वाला रिश्ता था जो अब भी इस दुनिया में थे। आन का दिल करता था इनके सीने पर रखकर अपना हरकत इन्हें बयान कर दे, लेकिन इनकी खुदगर्जी से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। इनकी लीजा के लिए मोहब्बत ने आन को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था। आपने बुलाया अम्मी भी आपने बुलाया। अम्मा भी सुल्तान की आवाज़ पे किताब पढ़ती। अम्मा भी ने नज़र उठाकर इसे देखा और किताब बंद करके साइड पर रखते हुए इसे पास बैठने का इशारा किया। हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए अम्मा भी। सुल्तान ने अम्मा भी के पास बैठते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम वापस लाहौर जा रहे हो। सुल्तान ने कुछ सोचा, इस बात में सर हिलाया। वजह जान सकती हूँ? क्योंकि यहाँ रहा तो इससे दूर नहीं रह पाऊंगा। सबके सामने पूरे हक से इसे अपने साथ ले जाऊंगा। फिर ऐसे करके मैं अपनी माँ का परसों का ख्वाब और उनका दिल दोनों तोड़ दूंगा। सुल्तान ने दिल में सोचा, लेकिन वो ये बात ज़बान पर नहीं ला पाया और इसलिए वो बोल पड़ा, क्योंकि मुझे वहाँ का बिजनेस संभालना है। बात तो है तुम्हारी ठीक, लेकिन एक मसला है। सुल्तान ने हैरत से अम्मा भी की जानिब देखा। वो बच्ची जिसकी तुम जिम्मेदारी लेकर अपने साथ लाए थे, मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ लाहौर जाएगी। अम्मा भी की बात पर सुल्तान का मुँह हैरत से खुल गया। क्यों? ज़िंदगी में पहली मरतबा शायद सुल्तान बेगम को कोई बात करते हुए लाया था। क्योंकि वो तुम्हारी मेट है तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी खिदमत करेगी। अम्मा भी ने आम से अंदाज में कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। वैसे भी इसे तुम अपने साथ लाए थे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अदम अब मौजूदगी में इसका ठीक से ख्याल ना रख सकूं। सुल्तान अम्मा बी की इतनी सी बात पर इस्तराब से मैं आ चुका था। वो जिससे दूर भागकर लाहौर जा रहा था, अम्मा बी से ही साथ ले जाने का कह रही थी। वहाँ जहाँ वो अकेला रहता था, भला खौफ इस पर अपना हक जता सकता था तो भला कैसे वो खुद को इससे दूर रखता जो इसके रूम रूम में बसती जा रही थी। लेकिन अम्मा बी, मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा अगर इन्हें पता लगा तो? फरीन की फिक्र तुम मत करो, मैं इसे कहूँगी मैंने कनिष्क को इसके माँ बाप से मिलने भेजा है। वैसे भी फरीन कौन सा तुम्हारे पीछे लाहौर आ जाएगी। हम अभी फिर इसकी परेशानी का हल निकाल गई, लेकिन असल परेशानी तो इसे वाकिफ़ ही नहीं थी। लेकिन जब मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा तब तो अम्मी देख लेंगी ना। आप प्लीज़ इसे मेरे साथ मत भेजें, मैं अम्मी को दुखी नहीं कर सकता। ये कहकर सुल्तान ने अपना सर झुका गया। इसका ज़मीर इसे चीख-चीखा कह रहा था कि ये सब इसने वो फ़ैसला करते हुए क्यों नहीं सोचा। अब वो अपनी माँ के साथ-साथ इस मासूम की तकलीफ़ का बाइस भी बन रहा था। सुल्तान की परेशानी देख अम्मा भी ने अपना हाथ इसके कंधे पर रखा। तुम बहुत अच्छे बेटे हो सुल्तान, मानती हूँ कि ईमान से अफ़ज़ल रिश्ता किसी का नहीं। हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ हमारी माँ की खिदमत और ताहत है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों में तवाज़ुन कायम करना सीखो बेटा। क्योंकि जो जवाब तुमने सिर्फ़ अपनी माँ के हुकूक का नहीं, हुकूक अलबात का देना है, और हुकूक अलबात में हर बंदे के हुकूक शामिल है, फिर वो चाहे तुम्हारी माँ है या तुम्हारी मेड। सुल्तान अम्मा की बात पर गहरा सांस लेकर रह गया। ये इतना भी आसान नहीं था। अगर वो कनीज़ को इसका हक देता तो अपनी माँ को खफा कर बैठता। अगर माँ की परवाह करता तो कनीज़ को ताहयात इसके हक से महरूम रखता। वो बहुत बुरी कशमकश में फंस चुका था। वैसे भी तुम्हारी इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि फ़रीन तुम्हें कनीज़ को ले जाते देखकर परेशान होगी, क्योंकि कनीज़ को मैं पहले ही तुम्हारे ख़ास आदमी अशफाक के साथ लाहौर के लिए रवाना कर चुकी हूँ। सुल्तान ने फ़ौरन अपना सर उठाकर अम्मा को भर हुई आंखों से देखा। अब तुम बेफ़िक्र होकर लाहौर चले जाना, तुम्हारे पहुँचने से पहले ही कनीज़ तुम्हारे घर पहुँच चुकी होगी। अम्मा भी मुस्कुरा कर कह रही थी और अपनी मासूम बीवी का किसी गैर मर्द के साथ होने का ख़्याल ही सुल्तान को पागल कर रहा था। अम्मा भी को मज़ीद कुछ कहे बगैर वो उठा और अपने कमरे से गाड़ी की चाबी और वॉलेट पकड़कर जल्दी से बाहर आ गया। हड़बड़ी में वो अपना सामान तक लेना भूल गया था। वो बस इतना जानता था कि इसे जल्द से जल्द कनीज़ के पास पहुँचना है। वो सिर्फ इसकी थी। सुल्तान तो किसी की निगाह भी इस पर बर्दाश्त नहीं करता, और अम्मा भी ने तो इसे गैर मर्द के साथ 4 घंटे के सफ़र के लिए रवाना कर चुकी थी। सुल्तान की पकड़ इस स्ट्रिंग वेल पर मजबूत थी। रिंगें से तन चुकी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर कनीज़ के पास पहुंच जाए। कांगो से बाहर निकलकर तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद इसे अपनी हवेली की गाड़ी नजर आई तो उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और अपनी गाड़ी इस गाड़ी के सामने करके इसका रास्ता रोक दिया। अशफाक सुल्तान की गाड़ी के सामने आते ही ब्रेक लगा चुका था और सुल्तान को गुस्से में गाड़ी से निकलता देखकर परेशानी से गाड़ी से उतर के इसके पास गया। खैरियत मलिक साहब? सुल्तान ने लाल आंखों से अशफाक को घूरा तो अशफाक ने घबरा कर अपना सर झुका लिया। सुल्तान ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर कनीज़ को देखा, जो इसे वहाँ देखकर पहले हैरान तो हुई, फिर इसका गुस्सा देखकर बुरी तरह से सहम गई थी। इससे पहले कि कनीज़ की बात पूरी होती, सुल्तान ने इसका हाथ पकड़कर इसे गाड़ी से बाहर निकाला और अशफाक की जानिब बढ़ा। अपनी बीवी को ले जा सकता हूँ मैं, तुम वापस हवेली चले जाओ। सुल्तान ने सख्ती से अशफाक को कहा। अशफाक निकाह के वक्त सुल्तान के साथ मौजूद था और इसके निकाह के गवाहों में से एक गवाह था, इसलिए सुल्तान पूरे हक से कनीज़ को अपनी मलकियत जाहिर करता और इसे अपने साथ खींचता हुआ अपनी गाड़ी तक ला चुका था। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुलकर सुल्तान ने कनीज़ को गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुठिया अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से से कसी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके साथ अकेले आने की? सुल्तान ने इतने गुस्से से कहा कि कनीज़ सहम कर गाड़ी के गेट दरवाजे से लग गई। वो अम्मा बी ने कहा था, इसलिए अम्मा बी की बीवी हो तुम या मेरी, तुम्हें मुझसे इजाज़त लेनी चाहिए थी ना, या इनसे? सुल्तान की बात पे कनीज़ ने जिस जख्म को बहुत मुश्किल से ढांपा था वो फिर से हरा हो गया था। बेख्तियार ही इसकी आंखों से आंसू बह निकले।
बीवी नहीं साईं मैट कनीज की रोंदी हुई आवाज़ पर सुल्तान ने हैरत से उसे देखा। सुल्तान को लगा वो इसके गुस्से से डर गई थी, इसलिए रो रही है। एक गहरा सांस लेकर सुल्तान ने अपने गुस्से को काबू में किया। आज के बाद ऐसा फिर कभी मत करना, मैं बिल्कुल गवारा नहीं करूँगी मेरी मलकियत किसी गैर मर्द के साथ तनहा हो। सुल्तान के ज़रा से नरमी से कहने पर सुल्तान कनीज ने अपने आंसू पोंछे और हंसते से इस बात में सर हिलाया। बेहतर साईं। सुल्तान को इसका साईं जी की जगह सिर्फ साईं कहना ठटका। इसके इस नाराज़गी की मासूम इज़हार को समझता सुल्तान गुस्सा भुलाकर मुस्कुरा दिया और कनीज खामोशी से गाड़ी से बाहर गुजरने वाले नज़ारे को देखने लगी। सुल्तान को इसकी ये खामोशी खास अच्छी नहीं लगी थी। वो चाहता था कनीज इससे बातें करे, बातें करो मुझसे। सुल्तान के अगले हुक्म कनीज से हैरत से इसको देखा। क्या बातें करूँ साईं? कुछ भी, बस मुझसे बातें करो। सुल्तान ने संजीदगी से जवाब दिया तो नन्ही सी जान मुश्किल में आ गई। इसे अपने सुल्तान का हुक्म में पूरा करना था। इसे समझ नहीं आता कि उससे क्या बात करे। मोटू पतलू और बाजी की बातें करो आप, मुझे इनकी बहुत याद आती है। कनीज ने अफसरदगी से अपनी बहन भाई को याद करते हुए कहा तो सुल्तान ने बेसाख्ता हामी सर हिलाया। वो इससे बात कर रही थी, सुल्तान के लिए ये सबसे अहम था। आपको पता है जो मेरे छोटे भाई मोटू पतलू है ना, वो दोनों का नहीं दिलचस्पी से इसे अपने बचपन का हर किस्सा सुनाना शुरू हो गई और सुल्तान इसकी मासूम बातों में खोया अब सुकून महसूस कर रहा था। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन वो अपनी परेशानियां कशमकश भुलाना चाहता था और कनिष्क की मासूम बातें ये काम बखूबी सर अंजाम दे रही थी। फिर पता है एक दिन बाजी ने पूरा घर साफ किया। मैंने मोटू पतलू के साथ मिलकर खूब गंदा मचाया। जब बाजी को वहां आता देखा तो मैं भाग गया। बाजी ने मेरे हिस्से का भी मोटू पतलू को जूतों से मारा। हा हा। ये बात बताकर कनिष्क हंसने लगे। सुल्तान खौफ सी कैफियत में से देखे जा रहा था। ये लड़की सच में इसका सुकून थी। अब तो वो सुल्तान के लिए बताई जान बनती जा रही थी और वो ही इस बात से अनजान थी। 2 दिन हो गए थे इनके निकाह हुए। इस रात के बाद लीज़ा का अज़म से सामना नहीं हुआ था। बस एक मुलाज़िमा इसे कमरे में आकर खाना दे जाया करती थी और लीज़ा बस ये सोचती रहती थी कि वो कैसे एक शख्स से हार मान गई, वो इसे शादी कर ली और वो तो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। जदीद दौर की मॉडर्न ज़हनत वाली लड़की और इससे इसका बाप और वो शख्स ज़बरदस्ती कर गए। ये सब सोच कर अज़म से ज़्यादा लीज़ा को खुद का गुस्सा आया था। वो इस कैद में यूँ घुट-घुट कर ज़िंदगी गुज़ारने वालों में से नहीं थी। वो इस जाहिल शख्स को बताने का इरादा रखती थी कि वो क्या चीज़ है। लीज़ा उठकर अपने बैग के पास आई जो शायद ने अगले दिन ही इसके लिए भिजवा दिया था। वो इसे खोलकर अपने लिए कपड़े निकालने लगी। आखिरकार इसे एक ड्रेस पसंद आया जिसे पकड़कर वॉशरूम में चली गई और शावर लेने के बाद वो कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। आईना में अपने जायज़ा लेकर लीज़ा के होंठ मुस्कुरा दिया। इस वक्त वो नीले रंग के घुटनों से ऊपर आते स्कर्ट और लाल शॉर्ट शर्ट में मलबूस थी जिसमें इसका पेट हल्का सा झलक रहा था। बालों को खुश करने के बाद ऊंची कोनी में बांधकर इसने होठों पर ग्लोस लगाया और ज़रूरी सामान शोल्डर बैग में डालकर कंधे पर लटकाते हुए घर से बाहर निकल आई। बाहर के गेट पर पहुंच के इसे बाहर निकलना चाहा तो दरवाजे पे खड़े आदमी ने इसका रास्ता रोक दिया। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कि मेरा रास्ता रोको, जाने दो मुझे यहाँ से। लीज़ा के इंग्लिश में ढांढने पर सब आदमी घबरा कर एक दूसरे की जानिब देखने लगे। चौधरी जी ने आपको बाहर जाने से मना किया है, हम आपको नहीं जाने दे सकते, एक आदमी ने सर झुकाते हुए कहा। उर्दू में कहा, लेकिन इसकी सारी बात लीज़ा की सर पर से गुजर चुकी थी। जो भी तुम कह रहे हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना है। लीज़ा ने आगे होकर गेट खोलना चाहा। क्या हो रहा है यहाँ? एक आवाज़ पर मुड़कर लीज़ा ने अज़म की जानिब देखा जो गुलाम के साथ अभी वहीं आया था। लेकिन जब इसकी नज़र लीज़ा पे पड़ी तो इसका लिबास देखकर वो जब से अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया। जबकि साथ खड़ा गुलाम अपनी नज़रें शर्म से झुकाकर अज़म की किस्मत पर मातम करने लगा। अपने आदमियों से कहो मुझे यहाँ से जाने दे वरना अच्छा नहीं होगा। लीज़ा ने अज़म के सामने आकर कहा, लेकिन अज़म का ध्यान अपने एक आदमी पर था जो हवस भरी निगाह से लीज़ा को सर से लेकर पैर तक देख रहा था। नज़र झुकाओ अपनी सबके सब वरना रब की कसम कभी कुछ और देखने काबिल नहीं छोड़ूंगा। अज़म के चिल्लाने के पर इसका हर आदमी फौरन अपनी नज़र झुका गया। अपने आदमियों पर से ध्यान हटाकर अज़म ने अंगारा होती आंखों से लीज़ा को देखा जो इसकी अमानत को यूं सबको देखा रही थी। इन्हें तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रही हूँ? मुझे यहाँ से जाना है। लीज़ा की बदतमीजी पर अब गुलाम को भी सब गुस्सा आने लगा था, लेकिन फिर भी इसने जब्त करते हुए इसकी कई बात अज़म को बता दी। कहाँ जाना है तुमने? गुलाम ने अज़म का सवाल दोहराया तो लीज़ा के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन जाऊंगी, डिवोर्स फाइल करने और फिर मुझसे ज़रूर ज़बरदस्ती का केस डालूंगी तुम पर। लीज़ा को लगा इसकी बात से अज़म डर जाएगा, लेकिन अज़म के होठों पर मुस्कुराहट देखकर लीज़ा हैरान रह गई। ज़रूर, बल्कि मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा पुलिस स्टेशन, लेकिन फिलहाल तुम अंदर चलो, कुछ ढंग का पहन कर आओ। अज़म की आखिरी बात पर गुलाम ने दुदकिचाते हुए लीज़ा को बताई थी, जबकि अज़म की बात सुनकर लीज़ा इसके करीब आई और शायद रंग की आंखें छोटी करके इसे घूरने लगी। ये मेरा जिस्म है मिस्टर, मेरा दिल जो दिल करेगा पहनूंगी, जितना दिल करेगा इतना इस जिस्म को दिखाऊंगी। तुम या कोई भी मुझे मेरी मर्जी करने से नहीं रोक सकता। और मुझसे मेरे कपड़े बड़े करवाने की बजाय अपनी सोच बड़ी करो। लीज़ा की बात पर गुलाम ने ऐसे अज़म को देखा जैसे कहना चाह रहा भुगतो। सारी बात अज़म को बता दी, लेकिन ये बात जानकर अज़म ने कुछ नहीं कहा बल्कि लीज़ा का हाथ सख्ती से पकड़ा, उसे अपने साथ खींचता हुआ इसी कमरे के ले आया
बताया जहाँ लिज़ा 2 दिन से रह रही थी। जाहिल इंसान छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी ज़ोर ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करने वाली, मैं तुम्हें। लिज़ा की बात पूरी होने से पहले अज़म ने इसे बेड पर फेंका। लिज़ा फिर शेरनी बनी गुस्से से अज़म को देखने लगी। यूँ अज़म ने आगे होकर लिज़ा को पैर से पकड़कर खींचा तो वो बेड पे गिर गई और उसके गिरते ही अज़म इस पर हावी हुआ। अज़म ने इसका छोटा-सा वजूद अपने भारी कम वजूद की गिरफ्त में ले लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें जिस्म दिखाने का, तो ठीक है, मेरी जान इख्तियार करता हूँ इस वजूद पर, ज़रा पूरी तरह दिखाओ इसे मुझे। लिज़ा ने दाँत खटखटाकर अज़म को बताना चाहा कि वो इसकी बात समझी नहीं, लेकिन अज़म का गर्म हाथ अपने टाँग पर महसूस करके इसके अल्फाज हलक में ही अटक गए। ये तुम क्या, तुम्हें ये टाँग दिखाते हया नहीं आती ना, तो फिर क्यों ना पूरी तरह से दिखाओ। अपना स्कर्ट ऊपर कर उसको सरकने के बाद लिज़ा को अज़म का हाथ अपनी थाई पर महसूस हुआ तो वो जी जान से काँप उठी। गाल खुद ब खुद गुलाब छलकने लगे। नहीं, नो प्लीज़। लिज़ा ने अपना काँपता हाथ अज़म के हाथ पर रख इसे मज़ीद कुछ करने से रोकना चाहा। क्या हुआ, अब क्यों रोक रही हो? तुम्हारा जिस्म है, जितनी मर्ज़ी दिखाओ। शायद तुम्हें टाँगें नहीं, कुछ और दिखाने में दिलचस्पी है। इतना कहकर अज़म ने हाथ इसकी टाँगों से हटाकर पेट पे रख दिया तो लिज़ा की जान निकलने की दर पर हुई। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता इसकी शर्ट पर ऊपर खिसका रहा था। लिज़ा ने फिर से अपना काँपता हाथ इसके हाथ पे रखा, लेकिन अज़म जो इसके पेट पर पहने मोती को महसूस कर चुका था, शान से मुस्कुरा दिया। विलायती चूज़ी ज़ेवर पहनने की ये कौन-सी जगह है? ज़रा देखने तो दो, अब कहाँ-कहाँ ज़ेवर पहन रखा है तुमने? आखिर तुम में कौन-सी शर्म हया है जो कतराओगी? मैंने ख़ाजी से कहती हुई अज़म इसके पेट के मोती पर झुका और इसे अपने दाँतों में दबाकर हल्का-सा खींचा तो लिज़ा सहम कर अपनी आँखें ज़ोर से मूंद गई। ये शख़्स की सोच और हिम्मत से ज़्यादा बेबाक साबित हुआ था। प्लीज़ ऐसा मत करो। अब मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूँगी, वादा। लिज़ा खुद नहीं जानती थी कि एक बार फिर से कैसे उस शख़्स की बातें समझे बगैर ही समझ चुकी थी। अज़म ने अपना सर उठाकर गहरी निगाहों से इसके चेहरे पर हया के रंगों को देखा, जो इस लड़की को पहले से ज़्यादा कई खूबसूरत बनाए गए थे। एक बात हमेशा याद रखना, ये शर्म और हया जो इस वक़्त तुम्हारे चेहरे पर है, ये औरत का सबसे कीमती गहना और उसकी हिफाज़त तुम्हारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। अचानक ही अज़म इसके इतने करीब हुआ कि लिज़ा को उसकी साँसों की महक इतनी साँसों में घुलती महसूस होने लगी। और तुम्हारा ये जिस्म तुम्हारा नहीं है, मेरा है। पूरी की पूरी तुम मेरी मलकियत हो। ग़ज़ल अज़म चौधरी, इस जिस्म पे तुम्हारी नहीं मेरी मर्ज़ी चलेगी, और अगर आज के बाद तुमने मेरी अमानत किसी और मर्द को दिखाने का सोचा तो। अचानक ही अज़म ने इसकी कँपकपाते नीचे लब को अपने दाँतों के दरमियान लेकर खींचा तो लिज़ा का रोम-रोम काँप उठा। वो अपनी आँखें ज़ोर से मीच गई। कुछ देर के बाद अज़म ने इसका नाज़ुक होंठ छोड़ दिया, जो इतनी सी गुस्ताखी पे लाल हो चुका था। तो अगली बार वो सब भी देख लूँगा जो नहीं दिखाना चाहती तुम। इतना कहकर अज़म इससे दूर और मुस्कुराकर इसकी ज़ोर से मीची आँखों पर कँपकपाते वजूद को देखा। अंडरस्टैंड? अज़म के पूछने पर लिज़ा ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया तो अज़म ने इसका बैग पकड़ा और कमरे से बाहर चला गया, जबकि लिज़ा इसकी बात तो समझी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शख़्स को अपने बेबाक लफ्ज़ से इसे हर बात समझा गया था। कुछ चलने की मुँह पर लिज़ा ने अपनी आँखें खोली और उठकर खिड़की के पास आई तो इसकी आँखें हैरत से फैल गई, क्योंकि अज़म बाहर सहन में इसका बैग रखकर जला चुका था। लिज़ा का दिल किया कि जाकर इस आदमी का मुँह तोड़ दे, लेकिन इसकी बेबाकियाँ याद करके फिर से लिज़ा का रोम-रोम काँप गया था। फिलहाल वो शख़्स का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो दोनों लाहौर पहुँच चुके थे। सुल्तान सीधा इसे अपने घर लेकर गया था, जो इसके साथ इतना अरसा गायब रहने की वजह से बंद था। सुल्तान अपना सामान निकाला तो कनीज़ ने मुँह बनाकर इसे देखा। आप मेरा सामान तो इसी गाड़ी में छोड़ आए साईं, अब मैं क्या करूँ? सुल्तान खामोशी से आगे चलने का लगा तो कनीज़ भी इसके पीछे-पीछे चल दी। कोई बात नहीं, हम कल जाकर शॉपिंग कर लेंगे, सुल्तान ने आपसे अंदाज़ में कहा। वो और दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ते हुए घर की लाइट्स ऑन करने लगा। कनीज़ अब मुँह खोले इस घर को देख रही थी। जो गाँव की हवेली जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन मॉडर्न तर्ज का वो साफ़-सुथरा घर बहुत ज़्यादा प्यारा था। रोज़ाना मुलाज़िमा सुबह आकर घर साफ़ कर जाती है और हफ़्ते बाद कपड़े भी धो देती है, इसलिए तुम इनमें से कोई काम नहीं करोगी, सुल्तान ने सामान सोफ़े पर रखते हुए कहा। और हाँ, अगर तुम अकेली घर से बाहर मत निकलना, बड़ा शहर है, कहीं तुम खो। सुल्तान अपनी बात कहते हुए कनीज़ की जानिब मुड़ा तो अल्फ़ाज़ मुँह में ही रह गए, क्योंकि कनीज़ का ध्यान इसकी बातों पे बिल्कुल नहीं था। वो तो चेहरे पे हैरत और मुस्कान लिए किसी खोए बच्चे की तरह इसके घर को देख रही थी। ये टीवी है साईं? कनीज़ ने लाउंज में लगी बड़ी सी एलसीडी की जानिब इशारा करते हुए पूछा। सुल्तान के इस बात में सर हिलाने पर इसकी आँखें खुशगवार हैरत से फैल गई। मैं इसे देख लिया करूँ, पता है जब मेरी अम्मा सरदार के घर सफाई करने जाती थी तो मैं चादर से मुँह छुपाकर इनके पीछे चली जाया करती थी। इनके घर की भी टीवी था, जो इनकी बेटी बैठ के देखा करती थी। वो इस टीवी पे कार्टून सुल्तान ने इसके लिए आसानी पैदा की तो कनीज़ मुस्कुरा दी। जी, वो कार्टून देखा करती और मैं वो देखने के लिए इनके पूरे बरामदे में झाड़ू दिया करती थी। कनीज़ ने हल्का सा हँस कर कहा। उसकी मासूमियत पे सुल्तान मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारा अपना घर है कनीज़, तुम जो चाहे इस्तेमाल कर सकती हो, तुम्हें मेरी या किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। सुल्तान की बात पे कनीज़ की मुस्कुराहट गायब हुई और उसने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। वो फिर से फर्माबरदार सी बीवी बन चुकी थी। वहाँ ऊपर मेरा कमरा, तुम यहाँ नीचे सो जाना, मैं हम दोनों के लिए घर खाना लेकर आता हूँ। सुल्तान इतना कहकर वहाँ से चला गया और इसके जाते ही 2 आँसू कनीज़ की पलकों पर ठहर से गए। नहीं साईं, ये मेरा घर नहीं, कनीज़ का कोई घर नहीं होता, वो तो बस मुलाज़िमा होती है, बस एक मिनट, कनीज़ ने अफ़सुर्दी से कहा और पलकों पर ठहरे आँसू रुखसार पर बहने लगे।